Good morning. Okay, so we have completed till question number. This we have done. Hello. हाँ, खाने पे मार का इसमें अभी क्वेश्चन ही नहीं है. Okay, no problem. Okay, we will solve this question 6.5. Now look at the question. Mrs. Shushila is employed with Messrs Alliance Engineers Private Limited. She provides you the following information for the assessment year 2021. ठीक है, अभी ये assessment year आपका change होगा 21-22 हो जाएगा. This is the change. You have to note it. ठीक है. Now salary is net salary per month. मुझे बताओ whether you require net salary or gross salary. क्या चाहिए होता है आपको? मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था. You always require, yes, we need gross salary. Salary should be gross. अब ये gross नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? इसको gross करना पड़ेगा. Yes. अगर ये gross नहीं है तो इसको gross करना पड़ेगा. ये net क्यों है? Because some deductions has happened. है ना? Deductions कुछ तो है इसमें से. So क्या क्या deduction है? Income tax deducted, profession tax deducted, provident fund contribution deducted, ठीक है, LIC प्रीमिया डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी पर मंथ. ठीक है, ये सारी चीजें क्या हुई है? डिडक्ट हुई है. ठीक है, दे हैव ऑलरेडी गिवन द इंफॉर्मेशन. यहाँ पर सिर्फ नेट सैलरी लिखा था, इस वजह से क्या किया हमने, ये एडजस्टमेंट करना है. इफ इट इज अ ग्रॉस सैलरी तो आपको ये सब देखने की जरूरत नहीं, ये सब आपके लिए फिर यूजलेस हो जाएगा. ठीक है, सिंस इट इज नेट सैलरी, कैसे पता चलेगा नेट सैलरी? या तो लिखा होगा, मेंशन किया होगा वहां पे कि नेट सैलरी है, या फिर वो लिखा होगा सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग. ठीक है, ये दो में से ही कुछ चीजें आपको मेंशन होगी वहां पे, तो आपको समझ में आएगा नेट सैलरी. इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये हमेशा ऐसे ही लिखा होता है. ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है नेट सैलरी का, ग्रॉस सैलरी का. बट सिंस दी सैलरी इज नेट दिया है क्वेश्चन में, तो ही आपको पता करना है कि वो नेट है या फिर सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग. तो ऐसे कुछ चीजें हैं तो ही आपको समझ में आता है कि नेट सैलरी है. अदरवाइज आपको क्वेश्चन में कोई भी दूसरे चेंजेस नहीं करने. एक एक्सेल शीट लो. Zoom it to a little and then we will start calculating. Upper part is going to be the same only in all the question. Okay, particulars and amount. Here we will write income from salary. Okay, underline it. Okay, start with net salary. उसको gross करना पड़ेगा पहले. बोलो कैसे gross करूं? इनर कॉलम में लिखा है मैंने, फटाफट. I am waiting. You can't sleep. Sir, add to all deduction. Yes, we will add all the deductions. ठीक है, income tax, then we have PT, then we have PF, then we have LIC. Bas? Okay. Is it per month? Yes, this salary is per month. ठीक है. Anyways, if you are adding all this, you will be getting salary per month only. Then you will have to multiply it by 12. Or else हर चीज को multiply by 12 करके ही आप यहाँ पे mention करो. That is also okay. So I'll do it now. ठीक है. So it is 2,28,600. So mention 19,050 multiply by 12. Okay. Then we have income tax deduction 200 per month. So per month means into 12. आप कैलकुलेट करके रखो. 150 into 12. PF 600 into 12. And LIC correct है? हाँ, LIC 1000. Okay. क्या है इसका अमाउंट बोलो?
2,400, sir. Next, बोलो. 1,800. Correct. Next, 7,200. correct. Next, 12. 12,000. very good. Now underline it. Add them all. You will get 2,52,000 as your gross salary. This is gross basic salary. Yeah? Okay, gross basic salary. Okay, let me know if there is any doubt. Okay. Okay, club fees made by employer. आपके जो क्लब की फीस है ना, वो आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है. Tell me what it is. Perquisite, sir. Perquisite. Perquisite. Very good. Club fees made by employer. And perquisite is taxable. 6,000 पर मंथ नहीं है, देख लेना. कुछ नहीं मेंशन है तो छोड़ देना. सैलरी इन लीव, लीव टैक्सेबल है. लीव की जगह पे आपको सैलरी मिली है. ओके. नाउ शी वाज गिवन अ कार फॉर अ एक्सक्लूसिव यूज ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ओनली. ठीक है, ऑफिस आवर्स में उसको कार मिला था यूज करने के लिए. इज इट परक्यूजिट? No, sir. No, sir. एंड अमाउंट इज आल्सो नॉट गिवन. इवन इफ इट इज राइट, तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, है ना? सो एनीवेज, ये ऑफिस यूज के लिए है तो वो आपका परक्यूजिट नहीं हो सकता. परक्यूजिट इज ऑलवेज योर पर्सनल बेनिफिट, है ना, एंड इट इज टैक्सेबल. Okay, so nothing else. We will add them all. We will find out the gross salary. This is your gross salary. ये क्या था? ये ग्रॉस बेसिक सैलरी था, है ना? वो हमेशा फाइंड आउट नहीं करना होता. अगर नेट सैलरी दिया है तो ही हम लोग ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करेंगे. अदरवाइज आपको पता है हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, है ना? ओके, व्हाट हैपेंस देन? लेस डिडक्शन under section 16. 16. Okay, what are the deductions here? Standard deduction. Standard कितना लूं? Maximum. 50,000. Okay, next deduction कौन सी है? Professional tax. PF, PT कितना? How much? 1,800, sir. 1,800. कहाँ पे दिया 1,800? यहाँ पे दिया. PT क्वेश्चन में है ना? एज पर क्वेश्चन. एंटरटेनमेंट अलाउंस यहाँ भी नहीं है और कुछ है भी नहीं इंफॉर्मेशन, सो टेंशन लेने की भी जरूरत है नहीं. एंटरटेनमेंट अलाउंस इट विल बी 51,800. नाउ द नेट सैलरी विल बी, दिस इज इनकम फ्रॉम या फिर नेट सैलरी भी आप बोल सकते हैं. ठीक है, so this is your question number 6.5. मेरे पास से व्यू सॉरी तो बोलो उसको सेकंड कॉपी बना के आपको एडिट उसको एडिट करना है. Okay, this is forwarded to your group. Next, ये सो ग्रेचुटी से रिलेटेड है, अभी तक हमने किया नहीं.
ये क्या है, क्या एम्प्लॉय डायरेक्टर, दिस इज डन। नया क्वेश्चन लेते हैं ना, क्वेश्चन 5 मिनट्स दो मुझे। This we have already done. ये कॉम्बिनेशन है। Okay, see the question. Profits in lieu of salary. So we have completed perquisite, we have completed allowances, we have completed gross salary. So gross salary का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, perquisite आपको समझ में आना चाहिए, allowances भी हम लोगों ने देखा, taxable non taxable part भी हम लोगों ने complete कर लिया है, we have already done. Okay, now see this. Mr. Mahendra is employed with Messrs. Milan Traders at Opera House, Mumbai since 2010. As per the terms of the contract, salary becomes due on the last day of every month. तो आपको last day month के मिल जाता है. Due to financial crisis faced by the employer, Messrs. Milan Traders, the salary of March to May was paid on 31st May 2021. ठीक है, ये जो है आपका assessment ईयर जो है वो change हो गया, मतलब 2021 ही होना चाहिए, 2022 होना, सॉरी ये तो प्रॉपर है, बराबर 21 में पे हुआ था। ये कौन सी सैलरी है, मार्च 2021 की है और मई 2021 की है, जो कि उन्होंने कब पे किया था, 31 मई को पे किया था 2021। ठीक है, ओके। सैलरी दोनों तरह से टैक्सेबल होती है, रिसीव्ड बेसिस पे भी होती है और आपका ड्यू बेसिस पे भी होती है, करेक्ट। सो ये मार्च की सैलरी चाहे आपको मार्च में ना मिली हो, मई में मिली हो या फिर कभी भी मिला उसकी सैलरी, इट इज टैक्सेबल ड्यूरिंग दैट ईयर ओनली। ठीक है, तो हमेशा 4000 पर मंथ दिया है तो आपको क्या करना है, 4000 इंटू 12 भी करना है। ठीक है, ये नहीं देखना है कि सैलरी मार्च की तो मिली नहीं थी तो इंटू 11 कर दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो 4000 इंटू 12 ही होगा, क्योंकि सैलरी जो है नहीं भी मिली है तो ड्यू तो हो चुकी थी, मार्च की सैलरी ड्यू हुई थी, तो उस बेसिस पे वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो 4000 इंटू 12 ही करेंगे। तो ये स्टेटमेंट का प्रैक्टिकली कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, okay. Now during the year ended on 31st March 2021, he received the following from the employer. Okay, उसकी नेट सैलरी दिया है, ठीक है, is entitled, अच्छा नेट सैलरी उसका दिया है 39,820 आफ्टर डिडक्शन ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है उसका 3520 है एंड प्रोफेशन टैक्स जो है उसका 2200 है। ये जो दिया है डिटेल्स, ये आपका अप्रैल टू फरवरी दिया है ना। ओके, थोड़ा सा नीचे से इसको हटाते हैं, क्वेश्चन की तरफ ही से देखते हैं। ये 11 मंथ्स की उसकी डिटेल दी है नेट सैलरी की, यहाँ पे भी सैलरी दिया और यहाँ पे भी सैलरी दिया। खैर, मुझे बताओ नेट सैलरी दिया तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस करना पड़ेगा सर। उसको ग्रॉस करना पड़ेगा। कैसे ग्रॉस करेंगे बोलो, सब डिडक्शन को ऐड करेंगे सर। तो 39,820 प्लस 3,520 प्लस 2,200 हो गया ग्रॉस। बट बेटा ये सिर्फ 11 मंथ का है, तो एक मंथ की सैलरी नहीं है इसके अंदर, तो एक मंथ की सैलरी जो है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। समझा क्या, समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। This is from April to February. Even if you gross it, तो भी आपको 11 मंथ की ही सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मंथ की सैलरी उसकी ऐड करनी पड़ेगी जो कि उसकी मार्च में है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया था। ठीक है, और यहाँ पे दिया है एक महीने की सैलरी कितनी होती है, 4000 होती है। ठीक है,
तो वो 4000 आप एक ऐड कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। बोनस के बारे में आपको क्या पता है? काम की चीज बता। सर टैक्स, बोनस रिसीव यस, इफ इट इज रिसीव्ड देन इट इज टैक्सेबल। बोनस डिक्लेयर्ड हुआ है तो नॉन टैक्सेबल, बराबर। तो ये बोनस रिसीव्ड है, यही हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो ये टैक्सेबल है। ओके, an award of appreciation 4000 for showing the presence of mind and saved the shop from fire during Diwali days। तो 4000 उसको अवार्ड ऑफ अप्रिसिएशन मिला है एम्प्लॉयर से, प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए उसको मिला है, एम्प्लॉयर ने दिया है। ठीक है, बोलो क्या ये प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी कंसीडर होगा? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, ठीक है, नॉट एज अ सैलरी। बोलो, इज इट टैक्सेबल? Yes, sir. है ना, टैक्सेबल होना चाहिए। अगर आपने लास्ट में देखा होगा, मैंने आपको वो फॉर्मेट यहाँ पे है, तो मैं आपको, हाँ ये इसमें मैंने आपको बताया है, देख लो ये हाँ देखो, पेमेंट रिसीव फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली और क्रिसमस, जो भी है आपको कोई भी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी मिलता है, इवन बोनस भी आपको मिल रहा है, तो भी तो टैक्सेबल है, इट इज टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल करने के लिए आपके पास रीजन होना चाहिए। कॉम्पनसेशन मिला है उसको 6000 ड्यू टू मॉडिफिकेशन। कॉम्पनसेशन भी किस में आता है? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में आता है, ठीक है। सो नाउ सी द सॉल्यूशन, हम लोग करते हैं इसको सॉल्यूशन। क्वेश्चन इसको बंद करता हूं, कंफ्यूजन हो रहा है। नाउ इट इज I will take the same format. Okay, नेट सैलरी है आपके पास फॉर 11 months। ओके, फॉर 11 months आपके पास नेट सैलरी है कितना है? 39,820। ऐड करेंगे जो जो डिडक्शंस उसमें से हुए हैं, पीएफ एंड पीटी। पीएफ का डिडक्शन है उसका 3520 एंड इसका 2200 है। ठीक है, वी गॉट ग्रॉस सैलरी फॉर 11 months, ठीक है, add 1 month salary on the basis of accrual or on due basis। ठीक है, ड्यू बेसिस पे मैंने 4000 ऐड कर दिया। सो नाउ व्हाट इज द टोटल? ठीक है, 49,540 is my gross salary for 12 months। ठीक है, एनी डाउट? उसके बाद बोनस is 8,000। then award of appreciation क्या है ये? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, that is 6,000, sorry 4,000। then compensation और modification, मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट में कुछ अग्रीमेंट वगैरह में चेंज किया है, अगेन व्हाट इट इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, amounts to 6,000। add them all,
you will get gross salary. Less, क्या less होता है? Deduction. Under section 16. ठीक है, कौन कौन सी डिडक्शंस होती हैं? Standard deduction. Standard. Professional. 3000 Profession and tax. PT कितना है? 1200, sir. So it is 52,200. यहाँ से माइनस कर दिया. Okay, this is your net salary. $15,003. Question number 6.50. So today we learned profit in lieu of salary also, net salary also. सारे concepts हमने यहाँ पे complete कर दिए. सिवाय रिटायरमेंट के अभी कुछ आपको नया सिखाने जैसा नहीं बात. ठीक है. Question number 6.15. This is also done. Basis of charge दिया है. ये तो रिटायरमेंट वगैरह है. Okay, look at this question. लेकिन ये भी रिटायरमेंट है तो let it. रिटायरमेंट जब स्टार्ट करेंगे तो ही रिटायरमेंट करेंगे, अदरवाइज. ओके, चलो. मिस्टर चंद्रकांत लिमे. अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने भेजा नहीं आपको, भूल गया. कहीं दिख नहीं रहा है. So question is also sent. It is not there in the PDF, so I am sending it again. Okay, this is the question. Mr. Chandrakant Lime is employed as a lecturer in Modern College. So Modern College जो है वो उसका क्या है, employer है. ठीक है. He furnishes the following information for the year ending 31st March 2020. Gross salary हमेशा taxable होती है. What about rent free bungalow? Rent free bungalow. Perquisite. Yes. Gross salary, please make sure that it is in per month. So it should be 30,000 into 12. Rent free bungalow आपका per annum में दिया है, तो you will keep it as it is. Leave salary is taxable. Bonus received is taxable. Correct. RES जो है वो taxable है. किसका है, कहाँ का है, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है. ठीक है. ओके. प्रोफेशन टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, ये पीटी है, तो पीटी हम लोग पीटी में देखेंगे. 200 पर मंथ है तो इनटू 12 करना नहीं भूलना. पीटी आपका उसमें आता है. ओके. डिडक्शंस. एग्जामिनेशन रेम्यूनरेशन फ्रॉम कॉलेज इज 4800. कॉलेज से उसको रेम्यूनरेशन मिला है,
कॉलेज उसका एम्प्लॉयर है, उसको एग्जामिनेशन जो रेम्यूनरेशन मिलता है वो भी टैक्सेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ही स्पेंड, ये क्या है, ये इनकम है क्या? ही स्पेंड 4,500 फॉर परचेज ऑफ बुक्स, बोलो, नो सर। है ना? ये तो इसके ऊपर तो टैक्स नहीं पे करेगा वो, तो क्यों दिया ये बोल रहा है कि इसके ऊपर डिडक्शन क्लेम करो। मुझे बताओ कि क्या ऐसा कोई डिडक्शन सर ने सिखाया है आपको? मैंने सिर्फ 3 ही सिखाया, मुझे नो 3 ही सर। मालूम है। हाँ, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। ओके, ही टुक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सर आपको सिखाएंगे अंडर सेक्शन 80, ठीक है? ये अभी इसका कोई मतलब नहीं है। वो हैंडीकैप है अंडर सेक्शन 80U, हम लोग वो सीखेंगे लेकिन लेटर ऑन, ठीक है? ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए इनको एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं, डिडक्शंस भी आते हैं। तो अभी तो डिडक्शन सीखा नहीं है, तो डिडक्शन का ये जो पॉइंट नंबर जो आपका 10 है और फिर उसके बाद का जो पॉइंट है हैंडीकैप वाला, वो आप अभी इग्नोर करें क्योंकि आपको पता नहीं क्या क्या करना है इसमें, ठीक है? वो हम लोग डिडक्शंस में सीखेंगे। कौन सा डिडक्शन? ओवरऑल डिडक्शन में सीखेंगे हम, सारे हेड्स खत्म होने के बाद, ठीक है? इसी को बोलते हैं हम लोग टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग करना होता है, हैंडीकैप होके टैक्स प्लानिंग नहीं करना होता है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह लेके आप क्या कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब अपना टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। वो मैं टैक्स प्लानिंग में आपको सिखाऊंगा, ठीक है? फिलहाल तो क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। ओके, डिडक्शन में कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी इसको? सॉरी, ये क्वेश्चन, हाँ, कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी इसको डिडक्शन में, है ना? बोलो प्रोफेशन टैक्स और स्टैंडर्ड। बस, है ना? सो ये आप खुद से कर लेंगे। ग्रॉस सैलरी 30,000 इंटू 12, रेंट पे बंगलो 36,000, लीव सैलरी 15,000, बोनस 30,000, अरियर्स 1,50,000, ठीक है? एग्जामिनेशन रेम्यूनरेशन 4,800, ऐड करो, ग्रॉस सैलरी मिलेगी, ठीक है? डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 एंड पीटी कितना है? 200 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 2,400, ठीक है? तो पीटी हो जाएगा 2,400, लेस करो, नेट सैलरी मिलेगी। विल यू बी एबल टू डू इट? यस सर। Yes, sir. ओके, गुड। सो ये आपके लिए होमवर्क है और मैं आपके लिए अटेंडेंस का लिंक भेजूंगा, ठीक है? देन वी विल सी हम लोग कोई और दूसरे क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्या, ठीक है? ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड 80%, ठीक है? 20% मतलब रिटायरमेंट बाकी है, नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। ओके, और जब से ऑब्जेक्टिव हो गया, सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है ना? वो आपको नेट सैलरी दे देंगे, बोलेंगे ग्रॉस मालूम करो, इंपॉर्टेंट है। आपको सैलरी के कंपोनेंट देंगे, बोलेंगे टोटल सैलरी मालूम करो, इंपॉर्टेंट है। आपको ग्रॉस सैलरी देंगे, डिडक्शन दिया होगा, डिडक्शन माइनस करना, नेट सैलरी मालूम करेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या टैक्सेबल है, क्या नॉन टैक्सेबल है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पूछ लेगा बोनस डिक्लेयर टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है, ठीक है? सो सारी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एज फार एज ऑब्जेक्टिव इज कंसर्न। ऑल्दो ये अगर आपको प्रैक्टिकल में आता तो ज्यादा अच्छा था, ठीक है? बट प्रैक्टिकल में क्योंकि एक सिंगल आपको पूरे मार्क्स उसमें मिल जाता है ना? तो दैट इज बेटर। खैर, जैसा ही पैटर्न होगा, जब पैटर्न आएगा तो पैटर्न के हिसाब से बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग को जो जैसा है देख लो, इसका आंसर नोट कर लो आप, 5,46,100 आना चाहिए। और मे भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ओके, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। चलो थोड़ा सा डिस्कशन ही करेंगे, अटेंडेंस गुड। ये थोड़ा सा मुझे क्लासरूम में सिखाना है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कुछ नहीं क्वेश्चन में, बट आपका सैलरी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया एंड दैट इज आल्सो नेट सैलरी, तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। लुक एट दिस क्वेश्चन, मिस्टर निकुंज हु इज टोटली ब्लाइंड is employed with BXL Limited. The details of his salary for the previous year 2021 as follows. बेसिक सैलरी दिया है एंड यू नो क्या करना है, 8,000 into 12 कर लेना है। बेटा डीए दिया है 75% ऑफ बेसिक, क्या करेंगे बोलो?
सर बेसिक सैलरी कैलकुलेशन करने के बाद उस पर 75% निकालेंगे। करेक्ट, करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे आप लोगों को, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, DA 75% ऑफ द बेसिक, आपको बेसिक मिल गया है, इंटू 12 करके आपको बेसिक मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इस पे थोड़ा सा ऐसी वर्किंग कर लेते हैं, पूरा नहीं सॉल्व भी करेंगे तो भी एटलीस्ट। ओके, सो बेसिक सैलरी कितना है? 8,000 इंटू 12। ओके, DA कितना है? DA is always taxable. करेक्ट, ये भी हो गया। नाउ HRA कितना है? HRA बोल रहा है एग्जाम 400 है, बट कैलकुलेट करने के टाइम पे बोल रहा है 20% ऑफ बेसिक सैलरी कैलकुलेट। तो कितना होगा? ठीक है, तो मैंने बेसिक का 20% निकाल दिया। एग्जामिशन हमेशा क्या होती है? लेस। कितना है? 400 इंटू 12, कितनी एग्जामिशन होगी? 4,800 की। टैक्सेबल अमाउंट इज 40,400। एनी डाउट? नो सर। ओके, एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल 2,000 इंटू 12। सर गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट? सर ने बताया था दोनों टैक्सेबल है। ठीक है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट का डिस्कशन कहाँ पर आएगा? डिडक्शंस में। ठीक है, वहां पे भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ही नहीं। खैर, 2,000 इंटू 12 टैक्सेबल है, अरियर्स टैक्सेबल है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी है तो ये लोन होता है। एडवांस अगेंस्ट सैलरी जो है वो लोन होता है। आपने सैलरी के अगेंस्ट क्या लिया? एडवांस लिया हुआ, ठीक है, लोन लिया हुआ। ठीक है, ये एडवांस सैलरी नहीं है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, ये लोन है, तो लोन है तो ये टैक्सेबल नहीं, ध्यान देना। लोन और एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉन टैक्सेबल, लेकिन एडवांस सैलरी टैक्सेबल होती है, याद रहेगा। एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज यस लोन। सर। ठीक है, एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज लोन, लोन इज नॉन टैक्सेबल। लोन आपका इनकम ही नहीं, लाइबिलिटी। ठीक है, ओके, कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब लिमिट। ठीक है, एम्प्लॉयर ने आपको लिमिट से ज्यादा 2,300 कंट्रीब्यूट किया है, बोलो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में आएगा, बराबर। इंटरेस्ट मिला है, एक्सेस प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में आएगा 780, मतलब टैक्सेबल। बोनस इक्वल टू 2 months बेसिक वाज डिक्लेयर्ड, क्या करेंगे? बोनस इक्वल टू 2 months बेसिक वाज डिक्लेयर्ड, सर नॉट टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल। सर ने बताया था बोनस डिक्लेयर्ड इज नॉन टैक्सेबल। अमाउंट स्पेंड बाय हिम ऑन एंटरटेनमेंट, क्या करेंगे? एंटरटेनमेंट में एक्सपेंसेस हुआ, माइनस कर दूं? Yes, sir. कर दूं? कहाँ से एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं? बोलो कौन सा ऐसा अलाउंस है जहां से एक्सपेंसेस माइनस हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग, कन्वेंस, लीव ट्रैवल, बताया था, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, सर। उसके अलावा कहीं से भी कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, एजुकेशन अलाउंस 600 इंटू 12 एग्जाम दिया है 1200, देखो 1200 है, 1200 पर मंथ नहीं है, ध्यान से। ठीक है, 600 इंटू 12 एजुकेशन अलाउंस माइनस 1200, परक्यूजेट वैल्यू दिया है। ठीक है, वैसे तो परक्यूजेट वैल्यू दिया है तो ही टैक्सेबल है, फिर भी आगे दिया है पर्सनल यूज 4,000, टैक्सेबल होगा कि नॉन टैक्सेबल? टैक्सेबल सर। हाँ, पीटी तो आपको पता है क्या करना है, और मेडिकल इंश्योरेंस का फिलहाल अभी छोड़ दो आप। ठीक है, ओके, आई होप। अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा हूँ,
एक ही जगह पे लेना पड़ेगा इसको, तब मैं भेज पाऊंगा। 2 मिनट्स है, लेट्स सी इतने में कंप्लीट हो पाता है। तो मैं आपको इसको भी ट्राई करो, नहीं आएगा कुछ तो बताना मुझे। एक जगह पे आ गया आपका व्हाट्सएप। ओके, नहीं आया तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना, देन वी विल सॉल्व इट। I'll stop sharing, stop recording.